Hello students, how are you all? Welcome to today's class. Our today's topic is computer fundamentals. Computer system. Computer is an electronic machine which can process given data in accordance to a set of instructions to produce a predetermined output. Its basic task always remains same, i.e. processing data to generate an output. Input, processing, आउटपुट, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट. तो कंप्यूटर सिस्टम आपको पता ही है कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली मशीन है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और साथ ही साथ आपके डेटा जो आप डेटा को प्रोवाइड करते हो, इनपुट जो आप प्रोवाइड करते हो, ये उसको प्रोसेस करती है, देन आपको उसका आउटपुट निकाल के देती है. तो ये एक आईपीओ साइकिल पे ही वर्क करती है. It is clear that computer system works on the basis of principle of IPO cycle, in which computer system receives input in the form of data and instruction from user, processes data on the basis of the given instructions and display processed data, i.e. information as output. We say that a computer is called a system because it is a group of integrated parts that work together to give desired result. A computer system is made up of following components: हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये हम बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के जो प्रिंसिपल है वो आईपीओ साइकिल पे ही वर्क करता है. आपसे ये डेटा रिसीव करता है, देन इसको सीपीयू में प्रोसेस किया जाता है एंड देन इसका जो प्रोसेस्ड डेटा है, जो उसका आउटपुट है, वो आपको दिया जाता है. अब कंप्यूटर सिस्टम के आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. एंड फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हार्डवेयर. Physical components of a computer system which you can see and touch are called hardware. A computer hardware is made up of following parts: input unit, output unit, processing unit, storage unit. Input unit. The input unit is a collection of input devices attached to a computer. These input devices take input in different forms from users and convert it into machine understandable form. Most commonly input devices are keyboard and mouse. तो physical component में हम पहले बात करते हैं input units के बारे में. input unit जो होती है ये आपके collection of input devices होते हैं, आपके कंप्यूटर से ये कनेक्टेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं वायर्स के थ्रू. ये जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये आपसे इनपुट लेते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन की लैंग्वेज में, जिसे मशीन जो है अंडरस्टैंड कर पाती है. मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, वो होते हैं आपके माउस एंड कीबोर्ड. हिस्टोरिकल बाइट. Keyboard has evolved from a typewriter invented by Christopher Latham Souls in 1868. Mouse was invented in 1964 by Douglas Engelbart. तो कीबोर्ड और माउस जो है ये आपके अलग अलग इन्वेंटर्स के द्वारा इन्वेंट किए गए थे अलग अलग ईयर्स में. Some other input devices are scanner. Scanner is a device that converts text images printed on paper into digital form and save them as files in computer. There are two types of scanners: flatbed scanners, handheld scanners. Flatbed scanner has a flat surface made of glass where the item is to be scanned is placed. It works like a photocopying machine. Handheld scanner is used by dragging it over the object that is to be scanned. It is most commonly used in shopping stores. Magnetic ink character reader, MICR, it reads the special characters printed using a special magnetic ink on the document such as check. Barcode reader, it is an input device used for reading barcodes. The barcode reader decodes the pattern and transfer it into the computer system for processing. The barcode reader consists of light source, a lens and a light sensor. अदर डिवाइसेस के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं स्कैनर के बारे में. स्कैनर आपका डिवाइस है जो कि आपके टेक्स्ट इमेजेस को, जो आपके पेपर में प्रिंटेड होते हैं, उनकी ये डिजिटल कॉपी आपके कंप्यूटर में सेंड करता है. अब यहाँ पे आपके दो टाइप ऑफ स्कैनर्स होते हैं. फ्लैटबेड स्कैनर जो कि फ्लैट सर्फेस के साथ आते हैं, जो कि ग्लास से बने हुए होते हैं, जहाँ पे आपके जो
जो भी चीज़ है, आपकी पिक्चर है या आपका डॉक्यूमेंट है, उसको वहाँ पे प्लेस किया जाता है, फिर उसको फ़ोटोकॉपी की तरह स्कैन किया जाता है और उसकी एक कॉपी जो होती है वो आपके कंप्यूटर पे बनती है। हैंड हेल्ड स्कैनर जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं बाय ड्रैगिंग ए टू ओवर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं और ज़्यादातर ये शॉपिंग स्टोर्स में आपको मिल जाएंगे। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स जो होते हैं ये स्पेशल कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए बनाए गए हैं और इसमें आपकी स्पेशल मैग्नेटिक इंक जो है वो यूज़ की जाती है। बारकोड रीडर्स आपने देखे हैं, ये कुछ इस तरीके के होते हैं और ये ज़्यादातर आपके जो शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पे आपके प्रोडक्ट में आपने देखा होगा वहाँ पे एमआरपी की जगह उसका क्या होता है, बारकोड होता है। उस बारकोड को इसके द्वारा रीड किया जाता है, फिर ये उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है कंप्यूटर में ताकि उसको आगे प्रोसेस किया जा सके या फिर उसका एक्चुअल रेट या उसके बारे में उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पता लगाई जा सके। Do you know a barcode is a pattern of black and white lines printed on packed products, books, etc. तो बारकोड जो होते हैं ये आपके पैटर्न्स होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट लाइन के, इस तरीके से जैसे आपने देखा होगा ऐसे आपके बारकोड होते हैं, उसमें आपके छोटे छोटे नीचे नंबर्स दिए होते हैं। तो ये जो बारकोड होते हैं ये कोड होते हैं, इनको आप इजीली नहीं पढ़ सकते, इसको क्या करना पड़ता है, स्कैन ही करना पड़ता है। Touch screen. A touch screen is a screen that you can touch with your finger to input information. For example, tablet, touch screen, monitor, smartphones, and ATM. Web camera. A web camera is commonly known as webcam. It is used for capturing still images and videos. This technology is widely used in video conferencing and instant messaging. Touchpad. A touchpad is commonly used in laptops. It is an alternative to the mouse. A touchpad works by sensing the user's finger movement and pressure. तो आगे हम बात करेंगे टच स्क्रीन की। टच स्क्रीन ऐसी स्क्रीन होती है जो सेंसिबल होती है आपके टच से। ठीक है, जैसे कि आप उसमें फिंगर टच करते हो, मूव करते हो तो आपको वो ऐप वगैरह ओपन करके देती है और आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करती है। जैसे आपके टेलीफोन है, आपका स्मार्टफोन है, एटीएम वगैरह में आप जाते हो तो आप देखते हो वहाँ पे स्क्रीन में जब आप टच करते हो तो उस हिसाब से आपको वो वर्क करके देती है, आपको डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। वेब कैमरा आपने देखा ये आजकल यूज़ किया जाता है ऑलमोस्ट हर जगह पे, जहाँ पे जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है या आपको किसी से चैट करनी है, वीडियो चैट करनी है, तो वहाँ पे आप वेब कैमरा का इस्तेमाल करते हो, जहाँ पे आप अपने घर पे बैठे हुए वर्ल्ड में कहीं भी किसी से इंटरनेट पे चैट कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हो। टच पैड आपका मोस्टली लैपटॉप्स में आता है, ये आपका ऑल्टरनेटिव होता है किसका, माउस का। तो आपने देखा होगा ये आपके यूज़र्स के फिंगर को सेंस करके उसके मूवमेंट एंड उसके प्रेशर को ये डिटेक्ट करता है। Historical byte. The touchpad was invented by George E. Garfield in 1988. Apple Computers was first to license and use the touchpad. तो touchpad को फर्स्टली इन्वेंट किया गया था 1988 में और एप्पल जो कंपनी है उन्होंने फर्स्ट इसको लाइसेंस्ड किया था, मतलब पहले इन्होंने अपने प्रोडक्ट में इसे यूज़ किया था। आउटपुट यूनिट. Output unit includes all output devices that are attached to computer. These are the devices that we use to get information out of a computer. You already know about the most commonly used output devices, monitor, speakers and printers. आउटपुट यूनिट्स में आपको पता ही है ऐसे डिवाइसेस जो आपको क्या देते हैं, आउटपुट निकाल करके देते हैं। आपको जो प्रोसेस डाटा होता है वो आपको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ही मिलता है। ये आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आउटपुट डिवाइसेस आपके कौन कौन से होते हैं, आपका मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर्स है, एक्सेट्रा। डू यू नो द आउटपुट डिस्प्लेड बाय मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी। अब जो आपके प्रिंटेड कॉपीज़ होती हैं जो आपके प्रिंटर के थ्रू निकाली जाती हैं वो आपकी हार्ड कॉपीज़ होती हैं और जो आपके मॉनिटर में आपको जो डिस्प्ले की जाती है वो आपकी सॉफ्ट कॉपीज़ होती हैं। Let us know about printers. The printer is an output device that is used for printing output on paper. The output given on printed on paper is called a hard copy. Printers fall in the following two broad category: impact printers and non-impact printers. Impact printer. In impact printers, the printer head strike the printer ribbon to create a mark on the paper. These printers are slow, noisy, inexpensive, and the quality of print is poor. Examples are dot matrix and daisy wheel printers. Non-impact printers, these printers
have tiny nozzles which spray ink at great speed on sheets of paper. These printers are faster, noiseless, and the printing quality is much superior. However, they are much more expensive. Examples are inkjet and laser printers. Inkjet printers are economical and commonly used. The speed of this printer is given in LPM, lines per minute. Laser printers are faster and produce high quality prints. The speed of this printer is given in PPM, pages per minute. तो प्रिंटर्स भी आपके आउटपुट डिवाइसेस ही कहलाते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आप क्या करते हो, आपका जो काम है आपके मॉनिटर पे वो आप अपने प्रिंटर के थ्रू हार्ड कॉपीज़ में उसका प्रिंट आउट निकालते हैं. अब प्रिंटर्स भी आपके दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं ये आपके प्रिंटर्स होते हैं जो हेड स्ट्राइक करते हैं प्रिंटर रिबन को, ताकि वो पेपर पे मार्क जो है वो क्रिएट कर सकें. ये प्रिंटर्स जो होते हैं ये स्लो होते हैं, बहुत नॉइजी होते हैं, आवाज़ इसमें से काफ़ी निकलती है, इनएक्सपेंसिव होती है और उनकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो काफ़ी पुअर होती है, मतलब काफ़ी अच्छी नहीं होती. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं, ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये टाइनी नोजल के साथ आते हैं और ये शीट ऑफ पेपर पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जो है वो छोड़ते हैं, क्योंकि इनकी जो स्प्रे करने की जो टेक्निक होती है, जो स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है. ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये काफ़ी फास्टर होते हैं और नॉइजलेस होते हैं, इनकी आवाज़ नहीं आती. साथ ही साथ इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी वो अच्छी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी माने जाते हैं. इनके एग्जाम्पल जो है आपके लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स. हिस्टोरिकल बाइट. The world's first computer printer was a 19th century mechanically driven apparatus invented by Charles Babbage for his difference engine. तो पहला जो कंप्यूटर प्रिंटर था उसको इन्वेंट किया गया था 19th सेंचुरी में, किसके थ्रू, चार्ल्स बेबेज के थ्रू. प्लॉटर्स यूज एन inkjet or ink pen to create the desired output on paper. Plotters are used where images such as graphs, charts, maps, etc. need to be printed. They are mainly used by engineers, architects. Plotters are divided into following categories: drum plotter, flatbed plotter, inkjet plotter. Liquid crystal display, LCD projector. Output from a computer can also be viewed on a large screen or flat surface other than the monitor using a LCD projector. It is commonly used in organizations for showing PowerPoint presentation during meetings. तो प्लॉटर्स जो होते हैं ये भी आपके इंकजेट प्रिंटर्स की ही तरह या इंक पेन की तरह ही होते हैं, जो आपके बड़े बड़े जो ग्राफ्स होते हैं, मैप्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, ये उनको क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको एलसीडी डिस्प्ले भी कहा जाता है, प्रोजेक्टर भी कहा जाता है. कभी कभी आउटपुट जो होता है कंप्यूटर से वो बड़ी स्क्रीन पे भी दिखाया जाता है, बड़े लेवल पे भी दिखाया जाता है, फ्लैट सरफेस पे भी दिखाया जाता है. तो इसके लिए आपके जो प्रोजेक्टर्स है वो यूज़ किए जाते हैं. प्रोसेसिंग डिवाइस. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. It is the processing device of a computer. It controls the working of the entire computer system. The CPU is placed on the motherboard inside the CPU box. The CPU is made up of ALU, CU and MU. Arithmetic logic unit, ALU, is that part of the computer system where all arithmetic calculations and other logical operations such as sorting and comparing of data takes place. Control unit, CU, sends command signals to the other components of the computer system. It controls and coordinates the various operations which take place in the computer. Control unit takes data to the ALU and from the ALU to memory and then to the output unit. Memory unit, MU, receives the data, holds it and then delivers it according to the instruction from the control unit. तो आपका जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो एक ही है आपका CPU. ठीक है, ये आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी माना जाता है, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर के सारे जो डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करता है और उनको जो भी आप डेटा इसको प्रोवाइड करते हो उसको प्रोसेस भी CPU में ही किया जाता है. अब CPU जो है ये आपका 3 यूनिट से बना हुआ है, ALU, CU एंड MU.
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है यहाँ पे आपके अर्थमेटिक कैलकुलेशंस वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशंस को यहाँ पे ध्यान दिया जाता है और उनको कंडक्ट किया जाता है, साथ ही साथ डेटाज को सॉर्ट और उन्हें कंपेयर भी किया जाता है। कंट्रोल यूनिट जो होती है ये आपके दूसरे कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर को कमांड भेजती है, सिग्नल भेजती है, साथ ही साथ ये जितनी भी एक्टिविटी होती है कंप्यूटर की उसको ये कंट्रोल करती है, ठीक है। मेमोरी यूनिट आपको पता ही है, इसमें आपके जो मेमोरी है, जो आपके जितने भी डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको स्टोर करके रखा जाता है। नाउ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस enables you to store data and information in them. The storage device of computer system is known as computer memory. There are two types of computer memory, primary memory and secondary memory. Computer memory, primary memory RAM, ROM, secondary memory hard disk, compact disk, पेन ड्राइव। अब हम बात कर लेते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर जो होता है वो डेटा को अलग अलग जगह पे स्टोर करता है, या हम लोग क्या करते हैं जो उसमें हार्ड डिस्क ऑलरेडी होती है उसमें तो डेटा स्टोर होता ही है, उसके अलावा अदर डिवाइसेस भी होते हैं जिसमें आपकी जो मेमोरी है, जो स्टोरेज है, उसको किया जाता है। तो कंप्यूटर की मेनली टू मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपके रैम, रोम आ जाते हैं, एंड सेकेंडरी मेमोरी में जो अदर डिवाइसेस है, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब आ जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी, इट इज ऑफ्टन called the working memory or the main memory of the computer system. It is the memory in which data is stored for directly accessed by the CPU. There are two types of main memory, RAM and ROM. RAM, random access memory, is a very fast memory. It is used to temporarily store data and instructions temporarily. RAM is volatile in nature, i.e. the content of RAM are lost if the power of computer is turned off. Now ROM, read-only memory, contains a set of startup instruction for the computer system. It is permanent or non-volatile memory. The instruction stored here can not be overwritten. These instructions have been stored at the time of manufacture of the computer. Secondary memory, it is used to store information permanently and it stores large amount of information. It has a much larger capacity than the main memory. It is the slowest and cheapest form of memory. This memory cannot be accessed directly by the CPU. Data from this memory is first transferred to the primary memory and then to the CPU. Examples of secondary memory are hard disk, compact disk and पेन ड्राइव। तो प्राइमरी मेमोरीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्राइमरी मेमोरीज जो होती हैं ये आपकी वर्किंग मेमोरी या मेन मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर सिस्टम की। ये मेमोरी होती है जिसमें आपके डेटा को स्टोर किया जाता है और उसको डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है सीपीयू के थ्रू। इसमें पहले हम बात करेंगे रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये बहुत ही फास्ट मेमोरी मानी जाती है और ये टेम्परेली आपके डेटाज को स्टोर करके रखती है, उनको ये टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस को संभाल के रखती है। रैम जो है ये आपका वॉलेटाइल नेचर का होता है। क्योंकि जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो ये जो वर्क मेमोरी होती है इसमें ये क्या हो जाती है, ये भी लॉस्ट हो जाती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी जो होती है ये आपका सेट ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। ये परमानेंट होती है और ये नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। अगर इसमें आपका पावर स्विच ऑफ भी हो जाए आपके कंप्यूटर का तो इसकी मेमोरी ईजिली रिमूव नहीं होगी। इंस्ट्रक्शन जो होती है इसमें स्टोर जो की गई होती है इसको आप ओवरराइट नहीं कर सकते। सेकेंडरी मेमोरीज आती है जिसमें आप अपनी मेमोरीज को स्टोर करके रखते हैं परमानेंटली। ये आपके स्टोर करते हैं लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को और इसमें आपकी जो कैपेसिटी होती है ये काफ़ी वास्ट होती है, लेकिन ये काफ़ी स्लोएस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी मानी जाती है। इसे आप इजीली सीपीयू की जो डायरेक्टरी होती है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। Units for measuring storage capacity for memory. Computer memory is measured in terms of bytes. Bit binary digit is the smallest unit of measuring the storage capacity. A byte is a collection of 8 bits. One byte can store only one character. The amount of computer memory is often expressed in terms of megabyte, gigabyte and terabyte. Some of commonly used measurement are 1 byte equal to 8 bytes, 1 kilobyte KB equal to 124 bytes, 1 megabyte MB equal to 1024 kilobytes, 1 gigabytes GB equal to 1024 megabytes, 1 terabytes TB
equal to 1024 gigabytes, 1 petabyte PB equal to 1024 terabytes, 1 hexabyte EB equal to 1024 petabytes, 1 zettabyte ZB equal to 1024 hexabyte, 1 yottabyte YB equal to 1024 zettabytes। तो आपकी यूनिट ऑफ मेजरिंग स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है आपकी मेमोरी की, वो आपके कंप्यूटर में बिट्स के द्वारा मेजर की जाती है। ठीक है, ये आपके बिट्स जो होता है ये आपका कलेक्शन माना जाता है 8 बिट्स का। 1 बाइट को आप स्टोर कर सकते हो एक ही कैरेक्टर के साथ। जो अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी होता है ये ऑफ्टन जो आपका एक्सप्रेस किया जाता है मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट्स के थ्रू। तो यहाँ पे आपके मेजरमेंट स्केल्स बताए गए हैं कि जैसे कि आपका 1 बाइट आपका 8 बिट्स बन जाता है, 1 किलोबाइट्स आपका 1024 बाइट्स बन जाता है, इसी तरीके से। नाउ सॉफ्टवेयर, computer software is defined as a set of program that controls the computer hardware parts and make them operational. It is the intangible component that we cannot touch components of the computer system. The hardware and software component of computer work hand in hand to make function and carry out the task we ask to do. There are two types of software: system software and application software. Software, system software, operating system, example MS-DOS, Windows, utility program, example Norton, antivirus, language translator, example compiler, assembler. Application software, word processing software, example WordPad, MS Word, presentation software, example MS PowerPoint, spreadsheet software, example MS Excel, DBMS software, example MS Access. तो आपके जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपको पता ही है, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिन्हें आप सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उन्हें फील कर सकते हो, उन्हें आप देख सकते हो, उन्हें आप टच नहीं कर सकते और ज़्यादातर को आप देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ये इंटेंजिबल होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। एंड आपके जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं ये आपके हैंड टू हैंड चलते हैं, एक दूसरे के बिना ये अधूरे माने जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच हैव बीन रिटन फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. These are the programs which run in background all the time till we switch off the computer. The operating system is an example of system software. Application software system of program that are designed to help the user to perform specific tasks such as the accounting system that can be used in departmental stores, and application software can be written using any computer language. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आपके सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि रिटन किए जाते हैं, लिखे जाते हैं ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये आपके बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं ऑल द टाइम जब तक आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ नहीं हो जाता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये आपके कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आप अपने कंप्यूटर पे अच्छे से वर्क कर सको और कुछ स्पेसिफिक टास्क को आप परफॉर्म कर सको। Relationship between hardware and software. The hardware and software together make a computer system. Both are essential components of a computer system. Hardware is the physical component of a computer system and software are the instruction or commands that make the hardware components operational. The software is the driving force of a computer. Without the software, a user cannot use on the computer. Thus, a software provides an interface between the user and hardware. Essentially, computer software controls computer hardware. These two components are complementary and cannot act independently of one another. In order for a computer to effectively manipulate data and produce useful output, its hardware and software must work together. तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच का रिलेशन क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है काम करते हैं, ये एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते। तो दोनों के दोनों जो कंपोनेंट हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए एसेंशियल है। हार्डवेयर जो होता है एक तरफ आपका फिजिकल कंपोनेंट बनाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, जबकि जो सॉफ्टवेयर होता है ये आपके इंस्ट्रक्शंस एंड आपके कमांड होते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर रहकर वो क्या करते हैं, सारा काम जो है, सारा टास्क जो है वो प्रॉपरली करते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपके ड्राइविंग फोर्स की तरह होता है आपके कंप्यूटर का। जैसे कि आपका कंप्यूटर
आपकी जैसे आपकी कार जो होती है वो बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, उसी तरह जो कंप्यूटर होता है वो बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता। इसलिए जो सॉफ्टवेयर होता है ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच में। तो दोनों के दोनों ही आपके जो कंपोनेंट हैं ये कंप्यूटर के लिए एसेंशियल माने जाते हैं और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। Let us rewind. The computer system works on the principle of the input process output IPO cycle. The computer system is made up of hardware and software components. Hardware refers to the tangible parts of a computer system, whereas software is the intangible component of the computer system. Input devices take input from user, whereas output devices displays output to the user. CPU is the processing unit of a computer and made up of the arithmetic logic unit, control unit and memory unit. The storage devices of a computer system is known as computer memory, which is of two types, primary memory and secondary memory. A byte is a collection of 8 bits. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.